right? See, so these are ore forming elements, group 16, which means they'll form metal oxides and metal sulfides, correct? And if you see by nature, oxygen and sulfur are non-metals. Silicon and selenium are, selenium and tellurium are metalloids, while polonium is radioactive metal. These are the group elements. Usually you will see oxygen exist as O2 at the room temperature, and it would show p pi strong bonds. Okay, that's why it exists as a diatomic form. Other elements does not show p pi bonds beta. And the reason, last time also we discussed that the 2p pi overlapping is much better compared to that of 2p pi and 3d pi, which is better than 2p pi and 3p pi, which is better than 3p pi and 3p pi, correct? So if you compare 2p pi and 3p pi, right? So obviously 2p pi overlapping is much better. So only oxygen is more relevant to give that p pi bonding. Others does not give that p pi. Instead, they exist as solids as S8 form or S8 or Se8 and so on. Polonium being a metal, it is only a solid with a monoatomic form. Okay. Atomic size increases down the group regularly. So there is no change in any trend. While ionization, if you look at it, it decreases down the group. Again, a regular trend. Electron affinity is the most important trend here because oxygen is the least electron affinity in the entire elemental form. Okay. While if you see halides, right, halides, chlorine is better than fluorine, then bromine, then iodine. Here, it is not like oxygen is coming on the second position. Oxygen will be at the far away position at the end. Okay. So that's what we need to remember, that oxygen's first electron affinity is not very good. Next. Okay, yes. Right. And well, the first ionization for any element, I mean, for oxygen and all of these elements are negative, but the second electron affinity for any element beta will always be positive. And that positive value is more for oxygen as compared to that of sulfur. Sir, why is the second one positive for all? See beta, element, if it already has a negative charge, you are trying to push one more negative electron to it to make it as M-2. No? So if you take any element, already it is negative, and top of that you are pushing a negative, which means they are repelling each other. It requires only 2 electrons to become stable now. So if we correct, are beta. giving no it, matter then... how much, absolutely. Okay. So if you compare the overall value of O2 minus in comparison to maybe N3 minus or C2 minus, correct, then O2 minus is better. But nevertheless, the second electron affinity for any element is going to be negative because they do not want to accept electron because of the electron positive, right? Electron gain enthalpy is positive, affinity is negative. Okay. Okay. Clear, beta? Yeah. Because electron affinity is minus of electron gain enthalpy, no? So that's how you can think. Yeah. Next, look at it. Electronegativity wise, if you look at it, oxygen is most electronegative as compared to that of polonium, and this is how it will change. Okay, electronegativity will change this way. Clear? Melting point and boiling point, if you see, tellurium will be having slightly better than that of polonium. And the reason is the Ns electrons does not participate for polonium because of inert pair effect. This, I think we have discussed this a lot of times about inert pair effect not participating in bond. Right, beta? Oxidation state, oxygen shows from -2 to +2. And these are some exceptional ones. There is inert pair effect in polonium also. Ha, beta. Because down the group, inert pair effect increases as you go down the group. So polonium is showing less inert pair effect as compared to that of increases. Inert pair effect increases, which means electron participation decreases. Sir, so in polonium, electrons will participate less. Yes, beta. Ns electrons will not participate. Only Np electrons participate. Correct?
Sir, so why is melting point increasing because of that? See, melting point depends upon the metallic character, correct? Because Yeah. more participation of electrons, more is the melting point. Got it? Down the group, usually the tendency to form metals increases. So that is why we are seeing that melting point is increasing. But only in polonium and tellurium, if you go down the group, the configuration is 6s2 and 6p4 for polonium, 5s2 and 5p4 for tellurium, correct? Yes. Now, since 6s is only going to come, I mean 6p is only going to come after finishing 4f, isn't it? Yes. Correct? तो यहाँ पर 4f भरा नहीं है ना. Here 4f is not filled, but here 4f is completely filled. So this 6x electrons will become more inert. So these two electrons do not participating in electron metallic bonding. But in tellurium, these two will participate. ठीक है? Okay. So tellurium will have more metallic bonding as compared to polonium. Clear, beta? Okay. So this is the basis of melting point. See, boiling point, you have to consider two factors. One But tellurium will have more metallic bonding than polonium, no? Polonium. Yes, beta. Okay. Second point is boiling point. See, boiling point depends upon two factors. One, how good is the electronic participation and how good is the molar mass, correct? See, molar mass Yes. of polonium is more, correct? Yes, But sir. here number of electrons are still influencing over that factor. So even the boiling point is more for tellurium. So boiling point is very much factual, beta. So boiling point के ऊपर हम लोग comment नहीं कर सकते. We just have to take it the fact, which because either of them can be dominating, right? कभी कभी हो सकता है molar mass dominate कर जाए, कभी कभी हो सकता है number of electrons participating dominate कर जाए. सर तो Okay? ये बाय हार्ट ही करना है, मतलब इसका कोई हाँ, रीजन नहीं है. बॉइलिंग पॉइंट हमेशा बाय हार्ट करना पड़ता है. मेल्टिंग पॉइंट आप इजीली गेस कर सकते हो कि जिसका इनर्ट पेयर ज्यादा होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट कम होगा उसके प्रीसीडिंग एलिमेंट से. ओके सर. ठीक है, बस इतना आपको पता होना चाहिए. क्लियर बेटा? यस सर. राइट. नेक्स्ट, oxidation state. Now if you look at the oxidation state, OF2, O2F2, ये सारे exceptional oxidation states है. But otherwise oxygen gives -2 to +2, all of them. Sulfur के कुछ exceptional oxidation states. Sulfur can show +1 with chlorine, +4 with fluorine, correct? H2S में -2 show करेगा, HCl2 में +2, and generally +6 तो show करता ही है. Okay? And down the group as you go, +4, +6 तक सब show कर रहे except polonium, inert pair effect again. So it cannot show +6 because of inert pair effect. Clear, beta? Okay. So these are the respective oxidation states. Now you can see stability of -2 decreases down the group. Obviously metallic character बढ़ रहा है, so -2 तो कभी form नहीं करेगा ना. Second, +6 is decreasing and +4 is increasing down the group. Okay, +6 क्यों decrease हो रहा है? Because of inert pair effect. And +4 क्यों increase हो रहा है? क्योंकि metallic bond में participate करने के लिए 4 electrons तो देगा ही, correct? That's why. क्यों metallic 4 metallic bond बढ़ रहा है, मतलब 4 electrons easily दे सकते हैं ना बेटा. Up to, because valence electrons में 4 electrons है, right? NS2 NP4 है, correct? That's why. Next, covalency. That is the maximum number of bond an element can form. See, oxygen maximum can form 4 bonds. Maximum. It does form H2O. H2O में 2 bonds है ना? H2O, when it is H2O, it has 2 bonds, correct? When you have H3O plus, it has 3 bonds. When you have HO minus, it has 1 bond, correct? As a 1 bond, 2 bond, 3 bond, it can make 4 bonds also. 4 bonds बहुत rare होते हैं. This is one of the exceptions. Basic beryllium nitrate. This is the exception compound which shows +4 oxidation state on oxygen. Okay, ki oxygen not +4. I meant to say covalence is +4. It is donating electrons here, correct?
donating, sharing electrons with one barium here, one beryllium here. So all 6 electrons which oxygen has are participating in bonding. ये बेटा सर सेंट्रल वाले इसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स थोड़ी पार्टिसिपेट कर रहे हैं. किसमें बेटा? सर द सेंट्रल वन. This one? Yeah. See, oxygen has 6 electrons ना, ये coordinate covalent bond है, ये coordinate covalent bond है. Okay, okay, हाँ. ये sharing है, ये sharing है, तो कितने हो गए? 6 हो गए ना. तो टोटल बॉन्ड्स काउंट करने का, बॉन्ड्स कितने हैं? 1 2 3 4 bonds. So that is its covalency. Okay. Yes, sir. Right. So while sulfur, selenium, tellurium, all of these have, you know, maximum covalency 6, which means they can give maximum 6 bonds, like SF6. Okay. ठीक है. Next, coming to the hydrides बेटा. हाइड्राइड्स में ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स पता होने चाहिए हमको. फर्स्ट वी हैव H2O as one of the hydrides. H2S up to tellurium, these are all gases, while H2 polonium is radioactive, so we can't describe its property that easily. Okay, that means it is metallic or not, it is solid, liquid, gases, ये पता ना मुश्किल है, but otherwise these 3 are gases in nature. ठीक है. Yes. Now if you see the bond dissociation energy, करेक्ट, एलिमेंट एंड हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड डिसोसिएशन चेक कर रहे हो. सो H2O will have very strong bond and the bond strength decreases down the group, and which makes sense ना बेटा, क्योंकि डाउन द ग्रुप साइज बढ़ रहा है, साइज बढ़ेगा तो एटॉमिक बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगा एंड इट इज इजी टू ब्रेक द बॉन्ड. बराबर. हाँ सर. नेक्स्ट, Ka value, acidic nature. So if you see the Ka value here, tellurium will have more Ka value than selenium, sulfur, and oxygen. Okay, so down the group the Ka value is increasing, which means the acidic value is increasing. Thermal stability, down the group it decreases because bond strength is decreasing. Boiling point, देखो boiling point में water is exceptionally high because very strong hydrogen bonding. Okay, and after water comes tellurium, selenium, and sulfur. It is based on the molar masses. में भी ऐसे ही होता है क्या? नाइट्रोजन ग्रुप 15 में आपने ध्यान दिया होगा ना, ग्रुप 15 में फर्स्ट BiH3 था, फिर SbH3 था, उसके बाद NH3 है, फिर AsH3 है, करेक्ट, फिर PH3 है. याद आ रहा है? इधर क्यों नहीं आता फर्स्ट NH3? इतना स्ट्रांग नहीं है. This hydrogen bonding, this hydrogen bonding is not as strong as that of water. Okay, yes sir. ठीक है, तो ये आपको तीनों केस में याद रखना पड़ेगा. Same goes for this also. सर H2T का बॉइलिंग पॉइंट इतना हाई कि उनका बॉन्ड बहुत स्ट्रांग भी नहीं है. बॉइलिंग पॉइंट बॉन्ड के बीच में से नहीं आता ना, मोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में होता है. दिस मॉलिक्यूल एंड द अदर मॉलिक्यूल, उन दोनों के बीच में. करेक्ट. अगर मोलर मास ज्यादा है तो यूजुअली इंटरेक्शन स्ट्रॉन्गर होगा. ओके ओके, गॉट इट. यस सर. तो आपको ये ग्रुप 15, 16, 17 याद रखना है बेटा. देखो ऐसे, करेक्ट. सो 16 और 17 में बहुत स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसके लिए HF यहाँ पे डोमिनेंट, वाटर यहाँ पे डोमिनेंट. ग्रुप 15 में इतना डोमिनेंट नहीं है, वो थर्ड पोजीशन पे आएगा. हाँ सर. तो बॉइलिंग पॉइंट ऐसे याद कर रहे हैं ना तीनों का. बाकी सारे केस में डाउन द ग्रुप इंक्रीजिंग ही है हाइड्राइड्स का. ओके. हाँ सर. नेक्स्ट, कमिंग टू मेल्टिंग पॉइंट. इस केस में मेल्टिंग पॉइंट भी सेम वेरी होगा. करेक्ट. नेक्स्ट, बॉन्ड एंगल H2O, H2S, H2SC, H2T ऐसे होगा. देखो बॉन्ड एंगल जो है वो ड्रैगोस रूल से हम लोग पता कर सकते हैं. ड्रैगोस रूल्स का मतलब क्या है कि इफ यू सी ग्रुप 15 एंड ग्रुप 16 ना बेटा, एक्सेप्ट द फर्स्ट पीरियड, सेकेंड पीरियड एलिमेंट, बाकी सारे एलिमेंट्स अनहाइब्रिडाइज्ड होते हैं. So here this is also unhybridized, and unhybridized. Okay, because they are unhybridized, the bond angle is close to 90, while इसका bond angle है around 104 degrees 5 minutes. Correct? तो यहाँ पर bond angle, कौन सा रूल बोला था आपने? ड्रैगोस रूल. पर वो रूल क्या रहता है? देखो, according to ड्रैगोस रूल, the group 15 and group 16 elements, ये इन दोनों के लिए है. Their hydrides, correct,
Not all are hybridized. See the reason, I'll tell you. Suppose if I take PH3, okay? Phosphorus has 3s2, 3p4, 3p3. Now it want to accommodate 3 hydrogens. It already has 3 unpaired electrons, okay? And S has a pair, बराबर? Actually, क्या होना चाहिए? That this electron should go and one unpaired should come here, unpaired, unpaired, and फिर ऐसे होना चाहिए. फिर ये दोनों, sorry, ये maybe you will see, ये तीनों के, ये चारों के चारों हाइब्रिडाइज होके sp3 बनना चाहिए, जिससे कि लोन पेयर एक जगह आ जाए और बाकी 3 आ जाए ऐसे. तो ये एक पिरामिडल शेप बनेगा, फिर हाइड्रोजन्स यहाँ पर आने चाहिए, जो कि अमोनिया में होता है. ओके, दिस इज एक्सपेक्टेड. बट व्हाट हैपेंस ना बेटा, हाइड्रोजन डज नॉट कम विथ पावरफुल रिपल्सिव ग्रुप. मतलब इट डज नॉट हैव टू मेनी इलेक्ट्रॉन्स, इजंट इट? एक ही तो इलेक्ट्रॉन है. तो उसका रिपल्शन इतना सफिशिएंट नहीं होगा कि 3s में से उसको एनर्जी दे कि वो p में चला जाए. समझ रहे हो? हाँ सर. So, but in nitrogen it can give, because nitrogen is smaller in size, isn't it? Yeah. So nitrogen में smaller size है, तो hydrogen काफी close आ सकता है. So hydrogen can come very close, so it can give sufficient repulsion that electron from S can migrate to P. Oh, अच्छा, okay sir. But ये phosphorus, arsenic, antimony और जैसे जैसे size बढ़ते जाएगा, उसका ability to hybridize और कम होती जाएगी. सर तो खाली फर्स्ट वाले में ही ऐसा माइग्रेशन हो सकता है ना, क्योंकि फर्स्ट वाले साइज में थोड़े छोटे रहते हैं. Exactly. That's why ammonia, वाटर एंड HF यही हाइब्रिडाइज्ड होते हैं, उसके नीचे वाले हाइब्रिडाइज नहीं होते. हाँ, गॉट इट सर. राइट, सो दैट इज कॉल्ड ड्रैगोस रूल. समझा बेटा? हाँ सर. सर तो उसका बॉन्ड एंगल पे क्या इफेक्ट आता है? हाँ, वही बता रहा हूँ. अगर वो हाइब्रिडाइज नहीं है तो वो बॉन्डिंग कैसे कर रहा होगा? बॉन्डिंग ऐसे कर रहा होगा, क्योंकि अभी ये p ऑर्बिटल px, ये py, ये pz है, करेक्ट? yes. तो हाइड्रोजन यहाँ पर और यहाँ पर आ जाएगा. तो अभी बॉन्ड एंगल कितना हो गया? 90, 90 और 90. हाँ. है ना? तो बॉन्ड एंगल 90 के ऊपर जाना मुश्किल है ना? हाँ सर. करेक्ट. इसी के लिए ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम विल मेंटेन 90 और स्लाइटली मोर देन दैट. थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन के कारण एक डिग्री शायद ज्यादा रहेगा, उतना. ओके. सो दैट इज व्हाई ऑल ऑफ दिस हैव क्लोज टू 90. दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग. यू सी 91 डिग्रीज होगा इसका, 90.5 होगा इसका, 90.2 होगा उसका. इतना सा डिफरेंस होगा. समझे? हाँ. यस सर. बट इसका बिकॉज इट इज हाइब्रिडाइज्ड, उसका बॉन्ड एंगल ज्यादा रहेगा. ओके सर. यस. Next, reducing character. Down the group, reducing character will always increase, which means ability to give H will increase. समझा बेटा? So it can give H very easily. Okay? Yes. Next, these are about hydrides. अभी oxides देखते हैं. Oxides में we have O2 kind and O3 kind. Like sulfur can make SO2 and SO3 also. Correct? So पहले EO2 देखते हैं. SO2, SeO2, TeO2, PO2 ये सारे बनेंगे. The first two are covalent oxides, the next two are ionic oxides, because this will have sufficient metallic character. So these two will show ionic character. ठीक है? सर पर मेटल तो खाली वो लास्ट वाला ही रहता है ना? Down the group metallic character बढ़ रहा है ना बेटा? हाँ, और ये more and oxygen is quite highly electronegative element ना बेटा? ओह या यस. और आपको पता है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस अगर 1.7 के ऊपर है, 1.6 और 1.7 के ऊपर है, so they all will be ionic. So that is why tellurium and polonium will show ionic character. Okay sir. आयनिक कैरेक्टर है बेटा. देखो मतलब 50% से ज्यादा आयनिक होता है. ऐसे नहीं कि 100% आयनिक कभी नहीं होता है. ठीक है? हाँ सर. All oxides are acidic here. So if you take SO2, add it to water, you will get H2SO3. If you take SeO2, add it to water, you will get H2SeO3. Correct? And TeO2 and PO2 acts like amphoteric oxides. ठीक है? अच्छा, पोलोनियम का वैसे तो हम लोग को रेडियो एक्टिव है, तो ये रहेगा नहीं रहेगा इसका गारंटी नहीं है, बट ये तो रहेगा ना.
इसी के लिए आपको इस ग्रुप में एम्फोटेरिक का ये एक याद करना पड़ेगा, सो दैट टेलुरियम डाइऑक्साइड इज एम्फोटेरिक। ठीक है बेटा। सर तो ऑल ऑक्साइड्स आर एसिडिक, वो करेक्ट नहीं है ना स्टेटमेंट? ऑल ऑक्साइड्स आर, वो ऊपर लिखा है ना, ऑल ऑक्साइड्स आर एसिडिक। हाँ एक्सेप्ट, सॉरी मैं पूरा लिखना भूल गया, except tellurium and polonium. Yeah. Okay. ओके सर। Right. Next, SO2. If you look at it, this is how the double bonds would be. Yeah. यस। एंड सल्फर में डबल बॉन्ड होना बेटर है, क्योंकि ये देखो इसका 2p पाई और इसका 3d, इट इज नॉट दी p ऑर्बिटल विच इज पार्टिसिपेटिंग। ये दोनों के बीच में जो पाई बॉन्ड आता है वो यूजुअली डी ऑर्बिटल से होता है ना, करेक्ट। सो इसके लिए ये बॉन्डिंग हो सकता है SO2 का। ओके, सर आप उधर एरो करके लिख दो ना कि एक मतलब डी और पी सो है। p pi and d pi, डी पाई। ठीक है। यस। Now here also selenium will have p pi and d pi bonding, p pi and d pi, p pi and d pi, okay। But it also show, क्योंकि ये एटम थोड़े थोड़े बड़े होते जाएंगे ना बेटा, they will have the polymeric character also। So now oxygen can attack on the next selenium and this oxygen can attack on the next selenium, ऐसे करते करते they will become polymeric as well। So SCO2 will be solid form and that will exist in polymeric form, while SO2 will only have pi bonds, so it will only show gaseous property। ठीक है। यस सर। SCO2 को हम लोग काफी यूज करते हैं। SCO2 को हम लोग कोई भी आल्डिहाइड में डाल देते हैं तो वो अल्फा पोजीशन को भी आल्डिहाइड बना देता है, और डबल बॉन्ड के ऊपर डाल देते हैं तो उसके अल्लाइलिक पोजीशन पे अल्कोहल लेकर आ जाए। दिस इज द रिएक्शंस इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री व्हिच वी सी फॉर SCO2 ऑक्सीडेशन। सर वो SCO2 का वही था ना कि इट एड्स ऑन अलाइलिक पोजीशन पे वो डबल बॉन्ड ऐड करता। करेक्ट बेटा, डबल बॉन्ड ऐड नहीं कर रहा है, OH ऐड कर रहा सर तो फर्स्ट वाला क्या है फिर? फर्स्ट वाले में है। ये OH वाला नहीं जो ऐड है हुआ? ये ना, इस कार्बन को ऑक्सीडाइज कर दिया उसने डबल बॉन्ड O करके, ये अल्फा पोजीशन है। हाँ ये सर। ऑलरेडी आल्डिहाइड है, आल्डिहाइड के अल्फा कार्बन को भी उसने ऑक्सीडाइज कर दिया। ओके ओके। हाँ सर। राइट। नेक्स्ट, सी द एसिडिक स्ट्रेंथ। SO2 अभी क्या होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ हमेशा डाउन द ग्रुप कम होता है फॉर ऑक्साइड्स, हाइड्राइड के लिए बढ़ता है, ऑक्साइड्स के लिए कम होता है, ये किसी भी ग्रुप में थ्रू आउट पीरियोडिक टेबल। ओके। ओके एंड सर रिड्यूसिंग सब में एजेंट, ऐसा ही रहता है क्या? सब में कोई भी ग्रुप लोगे तो डाउन द ग्रुप ऑक्साइड्स के लिए एसिडिक कैरेक्टर बढ़ रहा है, सॉरी कम हो रहा है, और हाइड्राइड के लिए बढ़ रहा है। ओके। और सेम रिड्यूसिंग एजेंट भी वैसे ही रहेगा, डाउन द ग्रुप हाइड्राइड्स के लिए रिड्यूसिंग कैरेक्टर बढ़ता है, यहाँ पे डाउन द ग्रुप रिड्यूसिंग कैरेक्टर कम होता है। और यहाँ पे हाँ सर। ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर बढ़ जाता है, क्योंकि रिड्यूसिंग कैरेक्टर कम हो रहा है तो ऑक्सीडाइजिंग बढ़ जाएगा ना। ठीक है। तो ये क्या होगा, TeO2 जो भी बनता है ना, वो हीट करने पर इमिडिएटली टेलुरियम में रिड्यूस हो जाएगा, ऑक्सीजन दे देगा, और ये O2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह रिएक्ट करता है। ठीक है। यस सर। नाउ लुक एट दिस। अभी EO3 को चेक करते हैं। EO3 SO3 SeO3 TO3 बनाता है ना। नाउ दिस इज ऑलरेडी एट अ हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, राइट। तो ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह तो काम नहीं करेगा, ये हाँ सिर्फ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। ओके। और इसमें भी आपको ये देखना है कि कौन ऑक्सीजन सबसे इजीली दे सकता है, और टेलुरियम ट्राइऑक्साइड में बॉन्ड स्ट्रेंथ कम रहेगा टेलुरियम और ऑक्सीजन का, सल्फर और ऑक्सीजन का बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा रहेगा। दैट इज व्हाई ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। बराबर बेटा। सर वो वाला पॉइंट समझा नहीं, वापस से एक्सप्लेन करो। देखो, आपको ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर आता है कि किस कौन ऑक्सीजन जल्दी दे सकता है ना। हाँ अब SO3 में ऑक्सीजन है, इसमें सब में ऑक्सीजन है। अब हाँ। इसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, इसमें बहुत कम है, इसमें ऑलमोस्ट सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर है। किसको तोड़ना सबसे इजी है, सर इसको, जिसमें बराबर सिंगल बॉन्ड, हाँ। है ना। तो क्योंकि इसको तोड़ना इजी है तो ये ऑक्सीजन इजीली दे सकता है, मतलब ये बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया ना। हाँ हाँ यस सर। गॉट। अब एसिडिक स्ट्रेंथ एग्जैक्टली उल्टा होता है। एसिडिक स्ट्रेंथ हमने क्या सीखा
कि जो डाउन द ग्रुप होता है हमेशा एसिडिक स्ट्रेंथ कम होने लगेगा फॉर ऑक्साइड्स। तो ये SO3 ज्यादा एसिडिक होता है, तो ऑन एडिंग वाटर इट विल गेट H2SO4, H2SCO2 एंड H6TeO6। ठीक है बेटा। हाँ सर। अब ये इसको कहते हैं हम लोग टेलुरिक एसिड बेटा। जैसे H2SO4 में क्या है ना, थोड़ा डबल बॉन्ड कैरेक्टर तो है, इसमें भी डबल बॉन्ड कैरेक्टर, इसमें बिल्कुल डबल बॉन्ड कैरेक्टर नहीं दिखेगा। इसी के अच्छा। लिए क्यों मैं ऐसे बता रहा हूं, देखो होगा तो पहले सब हाइड्रोलिसिस हो रहा है तो सारे ऐसे बन रहे हैं, OH 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 एंड OH। ठीक है बेटा। अब हाँ ये क्या करेगा, यहां से वाटर, देखो यहां से ये वाटर हटा दिया, यहां से ये वाटर हटा दिया, हटाने के बाद हमको मिल गया O डबल बॉन्ड S डबल बॉन्ड O OH एंड OH। सो 2 OH से ज्यादा सल्फर होल्ड नहीं कर सकता, ओ करेक्ट, ओके सर। बिकॉज इट कैन एग्जिबिट बेटर डबल बॉन्ड कैरेक्टर, तो इमीडिएटली इट विल डिहाइड्रेट दैट। एंड हाँ सेम हैपेंस विद सेलेनियम सेलेनियम। बट टेलुरिक एसिड वो नहीं कर सकता है। टेलुरिक एक तो है कि इसमें डिस्टेंस काफी ज्यादा है, बिकॉज टेलुरियम इज बिग इन साइज, तो देर इज नो एबिलिटी टू रिड्यूस एज वाटर। सेकेंड थिंग, डबल बॉन्ड इसका हाई बहुत वीक है, दैट्स व्हाई इट एग्जिस्ट ओनली एज H6TeO6, एंड इसी को हम लोग कहते हैं टेलुरिक एसिड। ओके सर। क्लियर? यस। Now that is all about oxides. Now let us see about halides. Okay. Oxygen, ऑक्सीजन कोई हैलाइड डायरेक्टली 6 या 4 नहीं बनाता है, इट कैन ओनली मेक 2 और O2X2 काइंड। ओके, उसमें से भी सिर्फ फ्लोरीन और क्लोरीन के साथ बनाएगा, और XeX2 ओनली O2F2, ओनली वन मॉलिक्यूल यू कैन हैव। क्लियर? ओके हाँ सर। नेक्स्ट सल्फर आप देखोगे तो इट विल मेक SF6, SF4, HCl6, ये सारे बनाता है। XeO2 विल मेक SF2, HCl2, एंड ये वाला ब्रोमीन तक बनाएगा, दिस विल मेक अप टू ब्रोमीन। करेक्ट? तो आप कैसे याद करोगे बेटा, देखो 6 का तो सारे सिर्फ फ्लोरीन ही बना रहा है ना, हाँ तो सर। ये याद हो जाएगा, राइट। हाँ 6 का तो सिर्फ फ्लोरीन ही बनाएगा। अब सल्फर का देखो, यूजुअली सल्फर और सेलेनियम ही पूछा जाता है एग्जाम। सल्फर में बाकी सब फ्लोरीन क्लोरीन बना रहा है एक्सेप्ट दिस ब्रोमीन, है ना। सो हाँ सर। S2Br2 भी बनता है, बस इतना याद रखना है आपको बेटा। ओके। ओके सर। हाँ और आपने देखा होगा तो सेलेनियम का भी सब कुछ सेम लॉजिक है, एक्सेप्ट यहाँ पर ब्रोमीन दोनों जगह बना रहा है, तो सर। ऐसे याद कर लेना और बेटा। EX2 कुछ भी नहीं बनता, मतलब कोई भी नहीं बनाता? EX2 सेलेनियम का नहीं बना था, ऑल्दो एनसीईआरटी में ऐसे मेंशन्ड है, दैट इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। ठीक है, क्लियर? अच्छा। हाँ, तो ये मल्टीपल टाइम्स हमने वेरिफिकेशन किया और एडवांस में ये पूछा गया था एक बार, जिसमें क्लियरली मेंशन था कि सेलेनियम विल नॉट मेक एनी फॉर्म ऑफ X2। ठीक है। सर तो वो एनसीईआरटी में ऐसा दिया हुआ है, तो वो लोग कौन सा कंसिडर करते हैं एग्जाम में? They have एनसीईआरटी में removed जो it दिया है। actually. That statement was earlier there. Now they have removed it. So don't worry ओके। about it. ओके। So now their statement only removed. So इस वाला केस लिखा ही नहीं उन्होंने सेलेनियम के लिए। ठीक है। अच्छा हाँ सर। Anyways, the idea is this. Next, tellurium you can see. अच्छा, टेलुरियम वगैरह तो नहीं पूछते आपको यूजुअली, सो बस सल्फर और सेलेनियम पे ध्यान देना, कौन सा बनाता है और कौन सा नहीं बनाता है। ठीक है। यस सर। नेक्स्ट, ओनली हेक्साफ्लोराइड्स आर नोन। ठीक है। यस सर। 6 वाला, सो SF6 एग्जिस्ट करता है, एंड दैट इज इनर्ट, दैट्स एन इनर्ट गैस एक्चुअली, हेवी गैस होता है। ठीक है, इट्स वेरी हेवी गैस। करेक्ट। ओके इनफैक्ट इतना हेवी कि उसके ऊपर पेपर फ्लोट हो जाता है आराम से। ओके, सर, इतना पेपर और हैवी कुछ रहता है? वेट, हाँ काफी हेवी होता है। सर ठीक तो है। इसको किधर यूज करते हैं SF6 को? SF6 को जहां पर भी हमको इम्प्यूरिटीज सेपरेट करने होते हैं ना, जो हेवियर इम्प्यूरिटीज और लाइट इम्प्यूरिटीज, वहां पे SF6 यूज करते हैं, काफी बहुत यूजफुल होता है सोर्स, जहां से आप बहुत लाइट पार्टिकल्स को सेपरेट कर सकते हैं हेवी पार्टिकल्स के साथ। ठीक है। अच्छा सर, और ऐसा कोई हैवी गैस है कि जिसमें ह्यूमन भी फ्लोट हो सकता है? दिस इज द हेवीएस्ट गैस बेटा, SF6। अच्छा ओके।
इनफैक्ट इसको ना एंड इट इज वेरी इनर्ट, ये रिएक्ट भी नहीं करता है, करेक्ट. सो हेंस इट इज यूज्ड फॉर गिविंग वेरी बेस, हाई बेस वॉइस. अच्छा. ओके. ओ. आपने हॉबिट्स मूवी देखा आपने? नहीं सर, हॉबिट्स तो नहीं देखा है. बट उसका ड्रैगन का आवाज कभी सुना है? हाँ सर, ऐसा सुना तो है. हाँ, बहुत बेस आवाज आता है ना. हाँ ओके. सर, तो ये यूज So किया था क्या the उसमें? actor Cumberbatch, he made that voice using SF6. Thanos का आवाज सुना है ना? हाँ सर. Okay. Thanos का आवाज भी it is made by SF6. Correct. तो वो So they लोग क्या इनहेल inhale करते हैं क्या? SF6. हाँ, पहले इनहेल करते. जैसे अभी कार्टून में बच्चों का वॉइस लेके आना तो क्या यूज करते हैं? हीलियम ना. हीलियम, हाँ. सो वैसे ही हेवी वॉइस के लिए SF6 यूज करते हैं. ओह ठीक है. अच्छा. हाँ सर. तो इस पे काफी तो आपको पूरे मूवी यूट्यूब में में वीडियोस भी मिल थानोस ने जाएंगे. ये इनहेल करके ही बात किया है. हाँ, मतलब उसका बेस वैसे भी हार्ड है, बट वेर एवर ही वांटेड टू थोड़ा इंटेंस चाहिए होता है ना बेटा, तो क्या हाँ. होगा, इट विल बिकम स्लीक व्हेन यू हैव टू अच्छा. डे लॉन्गर डायलॉग्स. सी, जब अगर मैं भी बात कर रहा हूँ, नाउ आई एम लिटिल बिट थोड़ा शाउटिंग मोड में हूँ अभी मैं. अच्छा. बट अगर मैं एकदम स्लो बात करूंगा तो मेरा बेस दिखेगा, राइट. ओह हाँ. बट अगर मैं जल्दी जल्दी बात कर रहा हूँ ना, अभी इतना बेस आपको समझ में नहीं है, करेक्ट. हाँ सर. सो सेम थिंग हैपेंस विद एवरीबडी. So if you talk faster, right, bass won't come. So, but if you want to maintain that, then you have to हाँ use SF6. सर, तो उसको है ये गैस इनहेल करने का क्या जरूरत है? वो लोग एडिटिंग में कुछ वॉइस नहीं चेंज कर सकते क्या? Authentic रखने के लिए, because they prefer this, correct. So for keeping more authentic, they prefer SF6 rather than editing. क्या हाँ. होगा एडिटिंग में, क्या होगा, प्रॉब्लम इज एक जगह पे एडिट किया, थोड़ा आगे पीछे हो गया, सो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर इट टू एडिट ऑल अदर प्लेसेस. हाँ. अच्छा सर. यूजुअली नहीं करते, and that is more costlier than just using SF6. ओह ओके. सर पर उसको कुछ होता नहीं है इतना सारा SF6 इनहेल करके? It will take longer time to exhale it out because it's a heavy gas. Okay. अच्छा. So लेने के बाद काफी देर तक ब्लोटिंग रहता है. It's, अच्छा. भूख ओह. वगैरह नहीं लगता है आपको, काफी टाइम जाएगा फॉर इट टू कंप्लीटली कम आउट. हाँ सर. सर तो क्योंकि हीलियम का इफेक्ट तो जल्दी जाता है ना, हीलियम को. जल्दी जाता है ना, लाइट है ना, हील फट से निकल जाता है. ये हाँ. जल्दी नहीं जाता है. यस सर. गुड. सी, SF6 does not undergo hydrolysis due to steric hindrance on sulfur, क्योंकि चारों तरफ से सल्फर कनेक्टेड है. एंड TeF6 undergoes hydrolysis to give telluric acid, कि TeF6 तो आराम से वाटर के साथ रिएक्ट हो सर पर जाएगा टू फॉर्म TeF6 tellurics. भी तो है, मतलब है बड़ा है ना, तो वो नहीं सराउंडेड रहता है क्या सल्फर No, जैसा? it is surrounded, but tellurium is bigger in size, na, it can be exposed to water, correct. ओके ओके. हाँ Sulfur सर. relatively smaller compared to the entire cloud of fluorines. Okay. हाँ So सर. tellurium can be exposed to water to get this telluric acid. So यस rate of सर. hydrolysis, if you see, TeF6 will have better hydrolysis. ठीक है. यस सर. नेक्स्ट, SF4 readily undergoes hydrolysis. इसमें तो क्या है, अभी दो प्लेसेस खाली है, तो आराम से ये हाइड्रोलिसिस हो जाएगा. So it will form H2SO3 and HF. Okay. ओके. यस सर. Monohalides exist as dimers and undergoes disproportionation. मतलब आपने सल्फर और सेलेनियम दोनों देखा है ना, S2Cl2 बनाते हैं, हाँ. राइट, एंड SC2Cl2. सो ये दोनों ही डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाते हैं बेटा. मतलब ये थोड़ी देर में ही ये सेलेनियम अलग हो जाएगा, SeCl4 बन जाएगा. And the same thing happens with sulfur also, S2Cl2. It will become, if I take 2 moles, it will become 3 moles of sulfur plus SCl4. ठीक है. And same happens with fluorine also, SF2. तो ये बन जाएगा 3 moles of sulfur and SF4. Done? यस सर. तो ये याद कर लेना, ये एनसीईआरटी में गिवन है, that how this undergoes disproportionation. ओके. हाँ. Next, coming to the compounds now. In compounds, we need to check dioxygen first. So dioxygen happens to form by heating higher oxides like PbO2, MnO2, Pb3O4. ये सारे को हीट करेंगे तो वो रेगुलर ऑक्साइड्स बन जाएंगे एंड रिलीजिंग ऑक्सीजन. ठीक है.
that is extracting oxygen by heating oxides. Second, heating less electropositive metals. ठीक है, मतलब आप देखोगे सिल्वर एंड मर्क्यूरी ये दोनों ना एलिंगम डायग्राम में एकदम क्लोज होते हैं, डेल्टा जी इज इक्वल टू 0 के बहुत कम टेम्परेचर पे दे विल ट्राई टू कट दैट. ठीक है, ओके, which means this is almost at around 50 degrees only बेटा, 50 to 100 degrees के बीच में. ठीक है, सो इतने से कम टेम्परेचर में ही आप थोड़ा सा हीट कर दो तो क्या हो जाएगा, ये इमीडिएटली डिकम्पोज हो जाएगा एंड गिव्स ऑक्सीजन आउट. सो सिल्वर एंड मर्क्यूरी कैन गिव और रिलीज ऑक्सीजन वेरी इजीली. ठीक है, हाँ सर. नेक्स्ट, हीटिंग पेरोक्साइड्स लाइक बेरियम पेरोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये दोनों को हीट करोगे तो ऑक्सीजन निकल जाएगा. अगर बेरियम पेरोक्साइड को हीट करने पर O2 जो निकलता है दैट इज कॉल्ड ब्रिन्स प्रोसेस. यस. और पेरोक्साइड को और अच्छे से एनहांस करना है तो MnO2 ले लो, MnO2 एंड हीट, सो दैट विल हेल्प यू बेटर फॉर रिलीजिंग ऑक्सीजन. ठीक है, नेक्स्ट, हीटिंग सॉल्ट्स like KMnO4, K2Cr2O7, KClO3, PbNO3 twice, ऐसे ये सारे ही metals, correct? Any of these metals you take on heating, first KMnO4 देखना, K2MnO4, MnO2 and O2 आएगा, K2Cr2O7, Cr2O3, K2Cr4 and O2 आएगा, KClO3, KCl plus O2 आएगा, PbNO3 या PbO plus NO2 plus O2 आएगा. So all of these are releasing O2. ठीक है, and same goes for KNO3 also and CaOCl2, which will use a catalyst of cobalt dichloride and that will become CaCl2 plus O2. So all of these are just the heating effects. बेटा ये आपको लिख के प्रैक्टिस करना है एक बार, कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है decomposition वाला, तो can you see all of these are decomposition only? yeah. So on heating they are getting decomposed and giving oxygen. ठीक है, okay sir. Yes. नेक्स्ट, हीटिंग सॉल्ट्स विद सल्फ्यूरिक एसिड. अगर यही KMnO4, K2Cr2O7, PbO2, MnO2 कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्ट करोगे तो भी सल्फर डाइऑक्साइड तो भी SO2 O2 आ जाएगा. सो इट विल फॉर्म Mn2O7, K2SO4, O2 एंड SO2 गैस. बेसिकली क्या है ना बेटा, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ ये इन सबको हाइड्रोलाइज करने के चक्कर में खुद SO3 दे देता है. ठीक है, बिकॉज H2SO4 तो स्टेबल नहीं है ना. नहीं है, वही तो बता रहा हूँ ना, H2O plus SO3 will give you H2SO4 बराबर. तो अब ऐसे सोचना कि H2SO4 अभी इनके साथ रिएक्ट करके SO3 दे रहा है, बट SO3 क्योंकि स्टेबल नहीं है वो SO2 और O2 में कन्वर्ट हो रहा है. समझा? तो इसके लिए सब केस में आप देखो SO2 plus O2, SO2 plus O2, SO2 plus O2 आएगा. ओके, हाँ सर. और ये H2O plus SO3 को ही ओलियम बोलते हैं ना. हाँ बेटा, इसी को ओलियम कहते हैं. नेक्स्ट, if you take large scale industrial preparation, then electrolysis of water, correct, by which you can get oxygen, or liquefaction and distillation below critical temperature of air. अच्छा मैं ये नहीं लिखा of air. ठीक है, तो आप क्या करो, एयर को आप उसके क्रिटिकल टेम्परेचर के बिलो लेके आ जाओ और उसको कंप्रेस कर दो. ठीक है सर, वो ऑफ एयर समझा नहीं, क्या है वो? लिक्विफैक्शन एंड डिस्टिलेशन ऑफ एयर बेटा. एयर को आपने क्या किया, उसके क्रिटिकल टेम्परेचर के नीचे लेके आ गया और उसको कंप्रेस किया तो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा ना. ओह हाँ सर. यस. तो पहले ऑक्सीजन कन्वर्ट होता है बिफोर नाइट्रोजन. ओके, या सर. द फर्स्ट लिक्विड फॉर्म विल बी ऑफ ऑक्सीजन. ठीक है, दैट्स एन इंडिकेशन. ओके सर. Next, see the properties of O2. O2 is colorless and paramagnetic compound. ये paramagnetic क्यों है पता है ना, क्योंकि अगर जब आप MOT के थ्रू आप लिखते हो सारे sigma 1s2, sigma 1, sigma star 1s2 and blah 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 यहाँ पे लिखते हो तो लास्ट में क्या आता है, pi star 2px, pi star 2px1 and pi star 2py1. ये होता है उसका कॉन्फ़िगरेशन बराबर. And that's why it would have two unpaired electrons. So hence it is showing paramagnetic property. ठीक है? Yes sir. And
In liquid and solid state, it will show blue color because of this unpaired electrons. बेटा क्या होता है देखो, these unpaired electrons in two orbitals can exist like a triplet, मतलब दो unpaired की तरह, या ये इधर से इधर ट्रैवल होकर सिंगलेट भी बन सकता है, करेक्ट। तो ये क्या करेंगे, ये टू इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है तो उसको ट्रिपलेट क्यों बोलते हैं? हाँ, टोटल स्पिन के ऊपर बेटा, टोटल spin calculation is 2s plus 1, total spin of electrons, that is 2 into s is each one is giving half spin, correct। और ऐसे हाँ. कितने इलेक्ट्रॉन से 2 है ना, प्लस 1, तो कितना हो गया 3, ठीक सर है। तो वो सिंगलेट में कैसा रहता है, 2 into 1/2? नो 2 into 0 ना, 2 into देयर आर नो दो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। देखो ये सिंगलेट में क्या हो गया, एक पॉजिटिव स्पिन है एक नेगेटिव स्पिन है, सो ओवरऑल स्पिन कितना हो गया 0 ना, 0. तो हाँ 2 into 0 plus 1, तो क्या हो गया 1, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सिंगलेट। सर, तो ये जब भी लास्ट वाले ट्रिपलेट में एक ऊपर और एक नीचे है तो उसमें नहीं 0 होता है टोटल स्पिन? हाँ अभी ये क्या, ये बता रहा हूँ बेटा मैं क्या हो रहा है, यहाँ पर ना 5 स्टार में जब था तो टू अनपेड इलेक्ट्रॉन्स ऐसे थे, बराबर, करेक्ट। हाँ. फिर सिंगलेट आया, ओके। अब ये जो सिंगलेट है, यहां से जब ट्रिपलेट बन रहा है, सॉरी मैंने उल्टा लिखा है, ये ऐसे ऐसे लिखना था, राइट, ओके। तो अभी ये क्या बनेंगे, ये इस स्टेट में से सिंगलेट बनते हुए फिर ऐसे वाले ट्रिपलेट में चले जाएंगे, गॉट इट। ओके. तो आपको क्या हो रहा है, एनर्जी लेने के बाद सपोज ट्रिपलेट से एनर्जी लिया उसने, सो ये ट्रिपलेट से वो ये ट्रिपलेट में कन्वर्ट हो रहा है बेसिकली वाया सिंगलेट फॉर्मेशन, करेक्ट। So हाँ because of सर. this transition, you will see color changes. ओह, Okay, ओके ओके. हाँ सर. that's it. Next, see, O2 reacts with most of the metals and non-metals, but inert towards inert metals. These are the four inert metals, बेटा आप अच्छे से याद कर लोगे, okay? Platinum, rhodium, gold and iridium. Okay? These ओके. are inert metals. मतलब ये किसी भी एलिमेंट से इजीली रिएक्ट नहीं करते डायरेक्टली, and in earth also you usually find them as the inert form only, ओके सर. right? Next, SO2 plus half O2 gives V2O5, right? So that is going to form SO3, and that is what we call it as contact process, है ना। तो ये रिएक्शंस हो गया ऑक्सीजन का, सो SO2 के साथ रिएक्ट होके SO3 बना सकता है, हाँ. HCl के साथ रिएक्ट होके खुद HCl को ऑक्सीडाइज कर सकता है Cl2 plus H2O में। तो यहाँ पे क्लोरीन प्रिपरेशन में हेल्प कर रहा है ना, इसी को कहते हैं डीकन्स प्रोसेस, अच्छा. करेक्ट। ओके सर. नेक्स्ट, क्यूमिन प्रोसेस तो हमने देखा है अल्कोहल्स में कि हाँ सर. क्यूमिन्स को हमने O2 के साथ रिएक्ट किया तो पहले ये पेरोक्साइड बनेगा और फिर हाइड्रोलिसिस करने पर ये फिनॉल और ये कीटोन बनेगा, सो दिस इज हाँ द सर. प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल्स, ठीक है। यस. सो ऐसे ऑर्गेनिक में इनऑर्गेनिक में काफी जगह यूज किया जाता है नेम रिएक्शन में, जहाँ पे ऑक्सीजन से आपको प्रोडक्ट मिल रहा है। हाँ सर. नेक्स्ट, लेट अस सी अबाउट ओजोन। Ozone is formed when O2 is sent through a silent arc discharge, मतलब silent arc discharge मतलब जहाँ पे साउंड नहीं आता है, ओके, सिर्फ आर्क ओके. प्रोड्यूस हो रहा है। एक ट्यूब होता है जिसको ओजोनाइजर कहते हैं, उसमें दो एंड पे कैथोड और एनोड होते हैं, ठीक है, और बीच में सिर्फ ऑक्सीजन गैस, और उसको बहुत हाई वोल्टेज पे हम लोग उसको चलाते हैं, तो क्या होगा, दोनों के बीच में आर्क प्रोड्यूस होगा, कैथोड और एनोड के बीच में, ठीक है। And ओके. due to that arc production, O2 molecules will start breaking down. And when they break, they will start making O3. So ऐसे हो जाता है बेटा, O2 will break into two nascent oxygens, and some of the oxygen will take out this nascent oxygen and becomes O3. Clear बेटा? यस सर. So इस तरह से ये दो लेगा तो ये दो ले लेगा और यहाँ पर दो बन जाएगा. So total, we'll see if you add that, you'll get this reaction. So सर इसको 3O2 वो is बोलते हैं ना, giving सीमेंस 2O3. ओजोनाइजर? Yes, yes, correct. हाँ सर. Brody's and Siemens ozonizer, दोनों ozonizers use कर सकते हैं, okay? ओके सर. हाँ. So anyways, सर साइलेंट आर्क क्यों बोलते हैं उसको, वो
It won't produce sound. That's it. These Okay, okay. ozonizers should not produce sound. Just only arc आना चाहिए, sound नहीं आना चाहिए. सर आर्क क्या रहता है एक्चुअली? If there is any medium between two electrodes, correct? हाँ. There is a sudden transfer of electrons, so that sends huge amount, that releases huge amount of energy. Correct? जैसे हम लोग को थंडरिंग और लाइटनिंग आता है ना. हाँ सर. So why is that lightning coming, बेटा? सर व्हाई इज इट कमिंग? हाँ, लाइटनिंग क्यों आता है? हम लोग रेनी सीजन में देखते हैं ना, लाइटनिंग आ रहा है. हाँ सर. लाइटनिंग इसलिए आता है कि अर्थ इज मेटालिक. अर्थ इज मोर मेटालिक ना. अर्थ में पूरा मेटल ही तो है. हाँ. तो अर्थ इज मोस्टली मेटालिक, करेक्ट. और पूरा एटमॉस्फेयर अपना ऑक्सीजन नाइट्रोजन गैसेस के साथ फिल्ड है, बराबर. हाँ सर. सो दैट विल एक्ट लाइक मीडियम. और ऊपर क्लाउड्स ना एक दूसरे को बहुत स्ट्रांगली हिट कर रहे हैं, करेक्ट. सो व्हेन द क्लाउड्स स्टार्ट कोलाइडिंग विथ ईच अदर वेरी स्ट्रांगली, सर तो बीच में जो गैस रहता है वो आयोनाइज हो जाता है क्या? ना वहां पर, वहां क्लाउड में ही आयनाइज हो रहा है. क्लाउड में काफी ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, करेक्ट. हाँ. तो वो जैसे हिट करेंगे एक दूसरे को, बहुत ज्यादा आयनाइजेशन हो जाएगा, तो काफी ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस हो जाएंगे. ठीक है. अच्छा, ओके. अभी बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव सॉरी वोल्टेज डिफरेंस आ चुका है क्लाउड में और अर्थ के बीच में. ठीक है. हाँ सर. सो दैट इज पास्ड थ्रू इलेक्ट्रिकल आर्क. ओह अच्छा. वो पोटेंशियल डिफरेंस को नलिफाई करने के लिए इलेक्ट्रिकल आर्क आ जाता है. तो सारे इलेक्ट्रॉन्स पास हो जाते हैं अर्थ की तरफ. ठीक है. सर तो ऐसे वो अर्थ पे लाइटनिंग किधर गिरने वाली है वो कैसे पता चलेगा? अर्थ पे किधर गिरने वाली? हाँ. ठीक है. यूजुअली क्या होता है कि देयर आर मेनी एरियाज वेयर इट कैन बी एक्सपोज्ड. ठीक है. कहीं पर भी अगर आपको थोड़ा भी आपको ऐसे इमेजिन दिस कि रेन रेन हो रहा है, तो वाटर इज इवन मोर कंडक्टिंग ना बेटा. हाँ सर. तो और फास्ट ट्रेवल होगा वाटर में, समझा. तो इसी के लिए जहां पर वेटनेस ज्यादा रहेगा उधर लाइटनिंग जल्दी स्ट्राइक करता है. इसके लिए बोलते हैं ना, जब बहुत ज्यादा बारिश हो रहा है, लाइटनिंग हो रहा है, झाड़ के नीचे मत रहो. क्योंकि पेड़ के ऊपर लाइटनिंग होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं. ओके. सर पेड़ पे क्यों लेकिन? पेड़ पूरा वेट होता है ना. ओके. हाँ. तो वो इजीली ट्रांसफर करता है ना अर्थ को. यस. और वो जितना हाइट रहेगा पेड़ उतना ज्यादा लाइटनिंग देता है. इसके लिए हिली एरियाज में देखो जल्दी बर्न, ये लाइटनिंग के कारण बहुत ज्यादा ट्रीज बर्न होते हैं रेन में भी. अच्छा. हाँ सर. सर तो हम लोग ये मैन मेड साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज में क्या करते हैं? बहुत सारा वोल्टेज डिफरेंस डालते हैं क्या दोनों के बीच में? दोनों के बीच में काफी ज्यादा वोल्टेज डिफरेंस दे रहे हैं, तो ब्रेक होगा, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स ब्रेक होगा और हम लोग को O3 आ जाएगा. ओके सर इसको देख सकते हैं, ये भी लाइटनिंग जैसा दिखेगा? हाँ बेटा, साइलेंट इलेक्ट्रिक आर्क आर्क जैसे दिखेगा अंदर. अच्छा. ओके. आर्क बनाना काफी इजी है बेटा. आर्क आप नॉर्मली भी बना सकते हो. मैजिशियंस कितना बनाते हैं? म्यूजिशियंस जो दोनों की दो एंड्स में वो लोग कैथोड एनोड रख लेते हैं एक्चुअली. ठीक है. तो बीच में ऐसे करते तो थोड़ा लाइटनिंग आ जाता है, वो सब आर्क प्रोडक्शन. अच्छा. हाँ समझा सर. ठीक है. राइट. नाउ सी what are the properties of ozone. Ozone is actually a pale blue color gas. It will become dark blue in liquid and violet black in solid. Okay. See, O3 is actually thermodynamically unstable with respect to O2. Hence, it will easily decompose to O2. ये ऐसा हो रहा है. O3 is giving, क्योंकि O2 और O3 में ये जो रिएक्शन है ना बेटा, देखो ये गैस है, ये गैस है, बराबर. तो व्हाट अबाउट डेल्टा एस का वैल्यू? डेल्टा एस का वैल्यू कम हो रहा है ना, क्योंकि यहाँ पे 3 मोल्स आर बिकमिंग 2 मोल्स, है ना. यस सर. और हीट तो यहाँ पे आप दे रहे हो, तो डेल्टा एच इज पॉजिटिव. सो व्हाट हैपेंस टू डेल्टा जी? डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस. तो दिस इज पॉजिटिव ना. तो रिएक्शन तो होना ही नहीं चाहिए, बराबर. हाँ सर. दैट इज व्हाई यू नेवर गेट.
हाँ, that is why you never get this what do you say 100% पूरा का पूरा कभी भी ओजोन बनेगा ही नहीं। इसमें से अच्छा। बहुत थोड़ा सा परसेंट ओजोन बनता है, और उसको आइसोलेट नहीं किया तो इमीडिएटली फिर पीछे आ जाएगा। ओके ओके। हाँ सर। ओके, क्योंकि O3 हाईली अनस्टेबल होता है, इमीडिएटली फिर O2 में कन्वर्ट हो जाएगा। हाँ सर, गॉट इट। हम्म, सर तो ऐसे उसको क्लियर। सेपरेट कैसे करते हैं, निकालते कैसे? ओजोन को, हाँ सर। ओके, जैसे ही ओजोन बन जाता है ना, करेक्ट, ये साइलेंट डिस्चार्ज का काम ही ये होता है बेटा कि इट विल नॉट इंक्रीज द टेम्परेचर, सिर्फ आर्क प्रोड्यूस कर रहा है। टेम्परेचर बढ़ाएगा तो रिएक्शन पीछे चला जाएगा, करेक्ट। हाँ। सो ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाएगा नहीं, सो इट विल कीप एट लो टेम्परेचर। और जैसे ही एक बार ओजोनाइज करते हैं इमीडिएटली आप उसको टेम्परेचर और कम कर दो, ठीक है, ताकि ओके। इमीडिएटली लिक्विफाई हो जाए। सो ये दोनों में ओजोन जल्दी लिक्विफाई हो जाता है, तो उसको लिक्विड में कन्वर्ट कर दोगे आप। सर डेल्टा एच ग्रेटर देन 0 है ना, तो टेम्परेचर हाँ बेटा, बढ़ाएंगे तो आगे जाना चाहिए ना रिएक्शन। टेम्परेचर तो डेल्टा एच तो डिपेंड नहीं करता डेल्टा टी पे, ये डिपेंड करता है फैक्टर। डेल्टा एस और डेल्टा एच बेटा डिपेंड नहीं करते टेम्परेचर पे, डेल्टा जी डिपेंड करता है। अच्छा हाँ, ओके सर। हाँ। सर तो डेल्टा एच, सर तो ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है कि एक्सोथर्मिक? एंडोथर्मिक, बिकॉज यू आर प्रोवाइडिंग हीट। सर सो व्हेन वी आर तो एंडोथर्मिक रिएक्शन में व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर द रिएक्शन गोज फॉरवर्ड ना। करेक्ट बेटा, सी दैट इज व्हेन इट इज इन इक्विलिब्रियम, है ना। हाँ। करेक्ट, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे इक्विलिब्रियम जैसा नहीं हो रहा है, रिएक्शन फट से बन गया रुक गया फिर से। अच्छा। करेक्ट। तो आप जो बोल रहे हो ना वो इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर डिफाइंड है वहां पे भी तो डेल्टा एच थोड़ी चेंज होता है। हाँ करेक्ट, सर। वहां पे के का वैल्यू चेंज हो रहा है ना। हाँ। उसके बेसिस पे आप बोल रहे हो कि रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा या बैकवर्ड जाएगा, बराबर। हाँ सर। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि अगर ये एंडोथर्मिक है, ठीक है, बहुत ज्यादा आर्क प्रोड्यूस करोगे, करेक्ट, एंड इफ इट इज एन इक्विलिब्रियम तो रिएक्शन आगे जाएगा, बट ये कोई इक्विलिब्रियम रिएक्शन है नहीं, राइट। इसके हाँ। लिए टेम्परेचर ज्यादा बढ़ाने लगोगे तो डेल्टा जी विल बिकम मोर पॉजिटिव, तो रिएक्शन पीछे चला जाएगा ना। तो ओके। आप बहुत हाँ ज्यादा सर। टेम्परेचर भी बढ़ा नहीं सकते। हाँ सर, गॉट इट। दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग साइलेंट आर्क। हीट नहीं कर रहे ओके। हो, हीट करने से ऑक्सीजन टूट के ओजोन नहीं बनेगा। हाँ सर, गॉट इट। नेक्स्ट यू सी O3 is thermodynamically unstable with respect to O2, hence it is easily decomposed to O2. Okay, now see the ओके। reactions of O3. O3, when you react with PbS, it will become PbSO4 plus O2, and O3 plus H2S, it will become sulfur plus H2O plus O2. NO2 भी कोई बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है बेटा, क्योंकि ये नेसेंट ऑक्सीजन काफी इजीली दे सकता है ना। हाँ सर। इसी के लिए आप जो भी रखोगे उसके सामने सबको ऑक्सीडाइज कर देते हैं और खुद O2 में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर? हाँ सर। Any doubt here? Right. हाँ। Even if you see K2MnO4 ना +6, उसको +7 में कन्वर्ट कर देगा KMnO4 में, ठीक है। So O3 oxidizes I- to I2 in neutral medium and in basic medium में आपको पता है ना I2 जो भी होता है वो IO3- और IO4- में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। यस सर। And what you will observe, this is one interesting thing, सल्फर, फॉस्फोरस, आयोडीन, इन सबके साथ चेक करोगे तो दिस इज H2SO4 H3PO4, बट विथ आयोडीन इन न्यूट्रल मीडियम, राइट, वो यहीं पर रुक जाएगा बेटा HiO3। सो डू नॉट थिंक दैट इट विल फर्दर ऑक्सीडाइज टू HiO4, ये गलत है। ये एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से मेंशन्ड है और जेई में पूछा गया। ये O3, if you oxidize iodine in water, what will it form? It will not form HiO4, it will be stable at HiO3, ठीक है। हाँ But सर। if you take dry environment, आपने water नहीं लिया है, then it will oxidize iodine into 2 moles, 1 mole into I+3 and the other mole into IO3-, ठीक है।
तो ऐसे Yes, sir. इफ यू टेक 2 moles of O2, राइट, 2 moles of I2, उसमें से एक आयोडीन I3 प्लस बन जाएगा और 3 आयोडीन्स IO3 माइनस बन जाएंगे. सो दिस इज I4O9 एंड इट इज एन आयनिकली बॉन्ड. I3 प्लस और IO3 माइनस में आयनिकली बॉन्ड होता है. सो दिस इज अ सॉलिड फॉर्म. Okay, Clear, got beta? it, sir. Next, reaction with KOH. If you take it with KOH also, यहाँ पर O3 में क्या करेगा, पोटेशियम से इलेक्ट्रॉन ले लेगा ये और ये रेड्यूस हो जाएगा एज O3 माइनस एंड पोटेशियम विल बिकम K प्लस और बाकी जो OH है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा एंड इट विल बिकम O2. ठीक है. पर वो I4O9 वाला जो है वो हाँ, वैसा रहता नहीं है क्या? वो ऐसा फॉर्म में नहीं होता है, ऐसे फॉर्म में होता है, आयनिक फॉर्म में, I3 प्लस IO3 माइनस. ओके, हाँ. ठीक है. So oxygen here is minus 1/3 oxidation state. Okay. And now Yes, you see all group 1 elements except lithium, sodium, these two, all of them except these two, correct? All of them will show this kind of compounds, KO3, RbO3 and CSO3. And stability increases down the group क्योंकि ये O3 minus डिपेंड करता है बेटा साइज पे. जितना बिगर साइज उतना ज्यादा O3 minus स्टेबलाइज होगा. जैसो ग्रुप 1 में हमने ये देखा ना बेटा कि एक बार मैं रिवाइज करता हूँ, आप फिर से याद करना. लिथियम को अगर ऑक्सीजन से रिएक्ट किया तो क्या बनेगा, सिर्फ Li2O बनता है. अगर वही Na को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो दोनों बनते हैं Na2O और Na2O2 बनता है. और वही पोटेशियम को आपने रिएक्ट किया तो वो बनेगा K2O2 और KO2 बन रहा है. K2O तो नहीं बन रहा है, मतलब ऑक्सीजन जितने ज्यादा बढ़ते जाएंगे, करेक्ट, दैट ऑल डिपेंड्स अपॉन कितना साइज ऑफ आयन है, राइट. सो बिगर कैटायन मोर ऑक्सीजन विल बी स्टेबल. ठीक है. यस सर. And that is the same logic I have applied here also. So you can see that CSO3 is more stable compared to KO3. Okay. Yeah, right. Now look at this. Now, if we talk about sulfur, okay, we have discussed oxygen, O3. Now let us talk about sulfur. Sulfur exists in many allotropes and it is due to its high catenating tendency. Catenation का मतलब क्या है? Stable single bonds. If you are able to make stronger or stable single bonds, that property is called catenation. Okay. Okay, beta. So now what you will observe, ये catenation property अच्छे से देगा, and in that first we will have orthorhombic or alpha sulfur. Okay, let us talk about orthorhombic sulfur or alpha sulfur. So orthorhombic or alpha sulfur is what you know. Orthorhombic, it is thermodynamically most stable form of all allotropes. It is found in volcanic areas and observed as yellow crystals. Volcanic में से जब भी yellow color crystals हम लोग निकाल पाते हैं, that is all sulfur only. Yes sir. Next, insoluble in water but soluble in CS2. Okay, prepared by dissolving roll sulfur in CS2 and slow evaporation of CS2. अगर हमको prepare करना है, rather than अगर we are not waiting for a volcanoes to erupt, we want to prepare it sulfur on its own, then what we do, we take roll sulfur. रोल सल्फर मींस एक रोल जैसा होता है बेटा, व्हाइट कलर सल्फर. ठीक है, व्हाइट कलर फॉर्म में रहता है. क्या रोल्ड फॉर्म में रहता है, रोल जैसा ही दिखता है वो पूरा. अच्छा, ठीक है. ओके. हाँ, तो वो उसको कहते हैं रोल सल्फर. तो रोल सल्फर को लेंगे और उसको CS2 में डिसॉल्व कर देंगे, फिर स्लो एवोपरेशन करेंगे हम लोग. सो CS2 चला जाएगा, जो बचा रहेगा दैट विल बी येलो कलर क्रिस्टल्स एंड दैट विल बिकम अल्फा सल्फर और ऑर्थोरोम्बिक सल्फर. तो इट इज लाइक एन आर्टिफिशियल वॉल्केनिक क्रिएट कर रहे हैं हम लोग, हीट करके वही रोल सल्फर को हम लोग ऑर्थोरोम्बिक फॉर्म में लेकर आ रहे हैं. ओके सर. नाउ if that alpha is heated above 369 degrees ना, वो it will convert into beta sulfur.
Alpha is Okay. converting into beta at around 369 degree, 369 Kelvin. Now, what is this beta sulfur? Beta is monoclinic sulfur, beta. Okay. Monoclinic sulfur क्या होता है? So when you melt alpha sulfur into a dish and cool it down till the crest is formed, ठीक है? अभी सरफेस पूरा सॉलिड बन जाना चाहिए, नीचे पूरा लिक्विड होना चाहिए, उतना कूल करो. ओके, इस तरीके से देखो, ये मॉल्टेन फॉर्म है, उसको हमने सिर्फ सरफेस क्रेस्ट को सॉलिडिफाई करने जितना उसको कूल किया. ठीक है सर, सिर्फ टॉप ही मतलब सॉलिडिफाई होना चाहिए? सिर्फ ऊपर का पार्ट सॉलिडिफाई होता है? हाँ, ऊपर का पार्ट सॉलिडिफाई होना चाहिए. ठीक है. ओके. अब ऊपर का पार्ट जैसे ही थोड़ा सॉलिडिफाई हो जाएगा, उसमें तो 2 होल्स कर दो. ठीक है. अब वो 2 होल्स में से आप सल्फर को निकाल दो, रेस्ट ओवर लिक्विड को आप पोर आउट कर दो. और जो पोर आउट किया ना, उसको आप कोई पेपर पे ऐसे पोर आउट कर दो और उसको कूल करने दो. सर, पेपर पे क्या पेपर पोर आउट करेंगे? ऑन द फ्लोर, ऑन द फ्लोर. आपने एक पेपर रखा, पेपर जैसा कोई, मतलब यू कैन इमेजिन समथिंग लाइक अ पेपर, करेक्ट, जिसका बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा हेवी हो. ओके, मे बी लाइक सम सिलिकॉन काइंड ऑफ अ पेपर बेटा, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो. अच्छा. या सिंपली आप सेरामिक पे डाल दो, कोई सेरामिक पे. ठीक है. ओके. अब जैसे ही आप सेरामिक पे डाल दोगे ना, तो वो कूल होते होते क्या होगा, एक नीडल शेप की तरह आ जाएगा, व्हाइट कलर नीडल्स. एंड दैट व्हाइट कलर नीडल्स विच कम्स, ओके, क्लियर, ऑन दिस सरफेस, दैट इज कॉल्ड एज अल्फा सल्फर. ठीक है. सर, नीडल क्यों आता है पर? पोर अभी करने आप, की वजह से? हाँ, वो जितना भी आपने ना जो पोर कर दिया ना आपने सल्फर, वो तो हाँ. हार्ड हो जाएगा. हाँ. अब बाकी जो सल्फर इसके ऊपर बचा ना, क्रेस्ट के ऊपर, आप उसको उल्टा टर्न करके देखो, तो इसके नीचे पूरा नीडल जैसा शेप आ जाएगा. ओके. अच्छा. तो वो सल्फर होता है अल्फा सल्फर. ठीक है. सॉरी, बीटा सल्फर, दैट इज बीटा और मोनोक्लिनिक सल्फर. सर, तो ओके, नीडल जो आपने ड्रॉ किया है वो ऊपर आएगा कि अंदर आएगा? अंदर आएगा. ये तो ओपनिंग है बेटा, अच्छा. नीडल्स ऐसे आएंगे अंदर. ठीक. ओके. Right. So this would be stable above 369 degrees. Okay. And below 369 degrees, it will convert into alpha sulfur. तो बीटा सल्फर इज वेरी सब्जेक्टिव. मतलब वो तभी स्टेबल रहेगा तब टेम्परेचर 369 डिग्रीज के ऊपर हो जाए. उसके नीचे रहेगा तो अल्फा विल बी मोर स्टेबल, तो वो अपने आप से अल्फा में कन्वर्ट हो जाएगा. ओके. ओके. हाँ. नेक्स्ट इज गामा सल्फर. This is formed when hot concentrated sulfur is chilled in ethanol or CS2 or toluene. Okay. So इसको sudden chilling करना पड़ता है. Correct. So when you do a sudden chilling, that is also a monoclinic kind, or that will form a gamma sulfur. ठीक है. So जैसे हमने मेल्ट, यहाँ पे देखो मैंने मॉल्टेन फॉर्म में लेके आया सल्फर रोल को और सडन चिलिंग कर दिया इन इथेनॉल और CS2 डाल के. ओके. So sudden chilling से जो बनता है, that is gamma sulfur. That's it. Anyways, alpha, beta, gamma, all of them will have acid rings, beta, and they look crown-like shape like this. अच्छा. ओके सर. That's it. Now, this is not for JEE or NEET here, correct? But if you see only for advanced, angle sulfur. Angle sulfur क्या है? और epsilon sulfur. Okay? Alpha, beta, gamma हो गया. अभी ये समझो epsilon sulfur. That is actually a rhombohedral form, which is prepared by pouring Na2S2O3 in hot concentrated HCl and extracting sulfur out of it, like this. Na2S2O3 को HCl में ऐड किया तो सल्फर आ जाएगा, SO2 और H2O निकल जाएंगे उसमें से, करेक्ट, और NaCl बच जाएगा. समझा बेटा? तो NaCl और इन दोनों के बीच में, सर थोड़ा लैग हो रहा है, आप थोड़ा सा वापस से बोलो ना. हाँ सॉरी बेटा, अभी सुनाई दे रहा है? हाँ सर. What I'm saying, Na2S2O3 sodium thiosulfate, if you add with dilute HCl, sorry, concentrated HCl, then this HCl
will interact with it, and S2O3 will undergo oxidation and reduction. Correct? So here the oxidation state is +2. From here it is becoming 0, and from here it is becoming +4. Oxidation reduction हो गया. And this would become NaCl, Na plus and Cl, and बाकी water and NaCl बनेगा. तो ये जो प्रेसिपिटेट बना ना, सल्फर का जो प्रेसिपिटेट बना, करेक्ट, NaCl तो वाटर में डिसॉल्व फॉर्म में रहेगा, बट उसमें सल्फर एक प्रेसिपिटेट फॉर्म में रहेगा. ठीक है. That precipitate form which you extract out, that is called Engel sulfur.